So I think we can start. So you can see Dr. Praful Gadge also. So thank you very much, sir, for kindly accepting our request and joining this small gathering, even though virtually. I know you have visited the campus more than once, and so just to brief about Dr. Praful Gadge, I would request our Director AIMT and Pro VC Asari sir to introduce him and say a few words about his background and his contributions to not just industry, but to Amity also as an honorary professor. Please, sir. So thank you, Dr. Sanket. Praful sir, Dr. Sanket has joined recently and he worked 14 years in Oman. He is a fermentation technology expert and he has joined us as a deputy director AIMT, and very soon now he will take over the full charge of AIMT and microbiology domain he will handle, and he is having great industrial integration in his full profile. So today also he is organizing this event, and then full week we will organize many events. So thank you, Dr. Sanket. Aap idhar aa jao. So, okay. So let us welcome on behalf of Amity University, Rajasthan, and department-wise, if you see Amity Business School, AIB, and AIMT, of course, because we all are from microbiology. Madam is from Business School. So Dr. Dipti, Dr. Aparna, and all faculty members, we should first grateful to the Department of Science and Technology, where we have received the research grants in the biotechnology department and FIST project in microbiology, FIST project, and in the university few departments jointly a PERS project जिसकी लैब आप लोगों ने देखी होगी, and some mega instruments, machines, multi-purpose machines, and Professor Kothari ji, he is the coordinator for this entire scheme in the university. He is the director and vice president of STIF, who are providing the hand-holding to the young researchers, PG students, and faculty members for research. So our university is now having a platform where we can begin the multi-directional research, and industry integration is our practice. So I will not take much time. I only highlight two things. Number one, university promotes multi-directional research. That is why today in hall, you are BBA, MBA, BTech, BSc, and MSc students from biotechnology, food technology, microbiology, and management students and faculty members. We will give full 1 hour to our very respective honorary professor, Dr. Praful Gadge. Dr. Praful Gadge is a perfect example of the young generation, and he has successfully established his company. I know you are from different background, so I have requested Dr. Praful to motivate you in the entire journey of entrepreneurship. Today we will not teach bacteria. Today we will not teach any fungi. Today we will not teach about any biochemical process. Today we will give you the motivation for entrepreneurship, because you know very well university is having incubator. You know very well university is having different cell to support you. So you be with us, because we will not teach subject and Dr. Praful will give you his journey. And great thanks to Dr. Praful, because first of all, he has accepted our invitation and he has joined university as an honorary professor. He has given one project, he has sponsored one PhD scholar, and frequently he is addressing the students and motivating our scholars and students. Why I am calling again and again Dr. Praful? Because he is the successful example setter. Because in India, 57,000 startup registered, 57,000 startup register हुए, 5,068 को फंड मिला, उनमें से 105 यूनिकॉर्न बने.
I think you are watching TV, you are watching YouTubes, and you are aware about Shark Tank, Think Tank, and all type of tanks. So the point is, the entrepreneurship is a hot word. Everybody want to come up with the idea, and idea must be in the market. And I think Indians have this capacity compared to other countries. That is why we stood third position globally. दुनिया में हम तीसरे नंबर पे हैं स्टार्टअप देने में, और मुझे लगता है आप सभी मेरे से सहमत होंगे. आई थिंक कोठारी सर भी ज्वाइन कर चुके हैं. नमस्कार सर. या मैं ज्वाइन कर लिया है. थैंक यू प्रोफेसर असेरी. यस सर, थैंक यू. आई एम जस्ट गिविंग फ्लोर टू यू इन 2 minutes. तो हम लोगों ने अगर अखबार और सब देखो तो एवरी डे published in the newspaper in America, in Germany, in Australia, in England, because our faculty, they have spent 2 year, 4 year, 3 year in European and American countries. Indian is working. Indian is the key person. Indian is the boss. Indian is the strategy maker. It means मुझे ये कहने की जरूरत नहीं है कि दुनिया की हर बढ़ती हुई कंपनी में Indians का रोल है. Yesterday I have visited Australian embassy. So I met with the commissioner higher education. हर 25 में एक साइंटिस्ट ऑस्ट्रेलिया में इंडियन है. So it is a matter of pride, and definitely today is the day where Professor Praful will share his journey. So I will not take much of the time. Thanks to Dr. Sanket, Dr. Dipti, Dr. Aparna, Dr. Preeti, all the faculty members, and thanks to Kothari ji for giving this support always. Kothari ji, over to you. Most welcome, Professor Aseri, and thanks to Professor Praful Gadge for joining and delivering a talk to the students and budding scientists who are going to make a difference to this country. And I appreciate the efforts made by Professor Sanket Joshi and the faculty from AIMT for organizing this lecture. I give great importance to this talk because now you are going to listen to a live example where a person like you has become an entrepreneur, and you will narrate your own story, and that will tell many missing links which some of us do not understand. Some of the students do not understand how to become an entrepreneur. So Praful, we are most grateful to you, and over to you for making your presentation, because I want that most of the time should be spent by you now. Thank you so much, sir. Thank you, grateful Professor. to you. Thank you, Kothari ji. And over to Praful Gadge. I met Thank you. him so many times. He is very humble person, and today also he is in car, and I just had a small telephonic discussion. He is with industry tie-up today, so he had a marathon meeting of 4 hours, and after 4 hours meeting, he could have said no, and he could also have said I need 30 minutes more just for a break. But he has immediately replied, no, I don't want break. I want to address the students. So thank you. Over to you, Dr. Praful. Dr. Thank you so much, sir. Let me assure you, Dr. Praful, that we will like to continue your science partner. Whenever you have any difficulty in your industry, we will try to find solutions for you, because we have a mixture of scientists of all disciplines here. Thank you. Certainly, sir. Thank you so much. That's why we are collaborated with the Amity, and we also have a research project ongoing in the joint operations. So I'm always grateful to the Amity, and whenever I visit Amity workplace, I find a great energy over there. So everybody is energetic and cooperative. That's really great. Infrastructure is also very good. That's very oftenly one cannot observe elsewhere. As I'm moving across the country in the institutions, companies, the laboratory currently we have is one of the well-equipped laboratory, and student must take benefit of that. They are certainly it's a great thing for them to be there in Amity. So thank you, sir, Kothari sir. Thank you, Dr. G.K. Aseri sir, and all the respectful resource persons over there for arranging my session to the students. So as like everyone, I have completed my 12th, then after graduation, BSc in
biotechnology, vocational biotechnology, then MSc in the biochemistry, then had an experience in research institution and PhD. Thereafter, I started my own startup, that is Biome Technologies Private Limited. This is the startup whose first product is unique one. Patent has been filed, and the product has been launched by the Union Agriculture Minister himself, by Narendra Tomarji. And one of the happy thing is it is launched in Jaipur itself at the National Institute of Agriculture Management, NIAM. We are incubatee of NIAM as an agriculture startup. We have been recognized by the central government. We have been funded under Rashtriya Krishi Vistar Yojana, and we have received funds of rupees 18 lakhs for the development and to reach the market for our product Soilometer, which is India's first and only soil microbial health analysis kit. It is the only kit for the organic soil testing purpose. It is the only kit which is the laboratory in the hands of farmers, which helps the farmers to analyze the quality of inputs they have been using for their farms. जैसे हम देखते हैं कि किसान के पास जो भी खाद आता है, जो भी पेस्टिसाइड्स आता है, फर्टिलाइजर्स आता है, जो भी प्रोडक्ट्स आते हैं, दे आर नॉट एबल टू एनालाइज द क्वालिटी। और इस इंडस्ट्री में चीटिंग बहुत सारी होती है। सो हाउ द फार्मर इज गोइंग टू अंडरस्टैंड दैट जो भी उसके पास प्रोडक्ट है वो जेन्यून है, वो उसको रिजल्ट देगा। और अब हम देख रहे हैं कि biotechnology based industries are doing good in agriculture. Biofertilizers, biopesticides, biostimulants are getting good results into the field. They have been loved by the farmers और इनका मार्केट भी बढ़ रहा है। इसमें नई कंपनीज आ रही है, नए स्टार्टअप्स आ रहे हैं। इवन जो MNC कंपनीज है जो केमिकल पेस्टिसाइड्स बेच रही थी, वो भी उन्होंने अपने खुद के बायोलॉजिकल प्रोडक्ट्स मार्केट में ला लिए हैं। तो ऐसे इसमें ये बहुत क्रूशियल है। दिस इज वेरी क्रूशियल फॉर द फार्मर्स टू हैव देयर ओन सर्टेन कंपेनियन विच विल गाइड देम फॉर द एप्रोप्रिएट सिलेक्शन ऑफ द प्रोडक्ट। कि किसान के लिए बहुत जरूरी है कि वो कोई भी प्रोडक्ट जो उसके लिए जरूरी है, क्वालिटी है, उसमें कंप्लायंस करता है, जो भी लाइसेंस है वो आइडेंटिफाई करे और अपने खेत में यूज करे, जिसकी वजह से वो अच्छे रिजल्ट्स पाए, अच्छी यील्ड उसको मिले, अच्छा प्रोडक्शन मिले और उसकी प्रोडक्शन कॉस्ट भी कम हो। लेकिन अगर किसान के हाथ में कोई इम्प्रॉपर प्रोडक्ट आता है जिसमें लाइसेंसिंग वगैरह तो है लेकिन क्वालिटी नहीं है या एक्सपायर्ड प्रोडक्ट है, तो वो क्या करेगा? इसको रिजल्ट नहीं आएगी, जो भी यूज करेगा उसके लिए वो पेमेंट करेगा, प्रोडक्शन कॉस्ट बढ़ेगी, रिजल्ट नहीं आते तो क्वालिटी हैम्पर हो जाएगी, यील्ड हैम्पर हो जाएगी, तो वो फाइनेंशियली लॉसेस में आ जाएगा। So by having a thought process of this, our product has been invented. We have almost delivered 3 years dedicatedly for the development of the particular product. और जिसमें हमें अभी कृषि मंत्रालय से, सेंट्रल एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री से फंडिंग भी मिला, और स्वयं कृषि मंत्री जो है हमारे कैबिनेट मिनिस्टर ऑफ एग्रीकल्चर यूनियन नरेंद्र सिंह तोमर जी ने इसका लॉन्चिंग जयपुर में ही किया था लास्ट फरवरी में, ऑलमोस्ट एन ईयर बिफोर। तो जयपुर से एक अच्छी कनेक्टिविटी भी है, अमेठी के साथ भी है, नियाम के साथ भी है। सो ऑलवेज लव टू विजिट जयपुर। ये कैसे हुआ, मतलब हाउ दिस डेवलपमेंट टुक्स प्लेस, इसके लिए पैसे कहाँ से मिले? और बीइंग एन स्टूडेंट की जो कॉलेज को बाइसिकल पे जाता था, बाइसिकल पे आता था, वाज नॉट हैविंग इनफ मनी टू डिलीवर द फीस ऑफ द कॉलेज एंड नंबर ऑफ थिंग्स वर देयर। लेकिन ये सब कैसे हुआ? हाउ ऑल दिस थिंग्स गॉट असेंबल्ड एंड ये प्रोडक्ट डेवलपमेंट कैसे हुआ? और आज बायोमी वन ऑफ द वेल नोन स्टार्टअप्स में है इंडिया के, और जो एक अच्छा प्रोडक्ट रेंज मार्केट में डिलीवर कर रहा है, सेंट्रल गवर्नमेंट को एडवाइजरी दे रहा है, और डिफरेंट स्टेट गवर्नमेंट्स को एडवाइजरी हम दे रहे हैं, एंड वी आर एसोसिएटेड विद 150 कॉर्पोरेट्स एज एन आवर क्लाइंट्स, जो कि हम जो भी एग्रोकेमिकल इंडस्ट्री है उनको भी एडवाइजरी, ट्रेनिंग या गाइडेंस दे रहे हैं। सो हाउ दिस हैज हैपेंड? तो इसमें एक ये है कि स्टार्टअप आज की तारीख में जैसे हम देखेंगे पिछले 15 साल में जो भी डेवलपमेंट्स हुए हैं, वन ऑफ द इम्पोर्टेंट थिंग इज गवर्नमेंट सपोर्ट फॉर द स्टार्टअप्स। कि ऐसा नहीं है कि पहले कोई एंटरप्रेन्योर था, इंडस्ट्री ओनर था, कोई भी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी शुरू करनी थी, चलानी है, बनानी है, तो उनको बहुत सारा फंड चाहिए था, बहुत सारे कंप्लायंसेस चाहिए थे, बहुत सारे रिसोर्सेस चाहिए होते थे। लेकिन आज आप भी, मैं भी आपके जैसा हूँ, तो आप भी अपना खुद का स्टार्टअप शुरू कर सकते हो, मार्केट की रिक्वायरमेंट्स फुलफिल कर सकते हो। तो उसमें कुछ वेल नोन एग्जांपल्स आर देयर इन फ्रंट ऑफ अस। जैसे कि कोई अगर हम नॉन साइंटिफिक स्टार्टअप्स के बारे में बात करेंगे कि जो हमेशा सुर्खियों में है, तो देखिए एक ऐसा स्टार्टअप है जिसकी एक भी कार ओन्ड नहीं है, फिर भी वो थाउजेंड्स ऑफ इंडियंस को कार की सर्विस रेंटल बेसिस पे दे रहा है, एंड दैट इज ओला। सिमिलरली उबेर एक ऐसा स्टार्टअप है जिसके नाम पे कोई भी होटल नहीं है, और वो स्टार्टअप सबको होटल्स में रूम मुहैया करवा रहा है। आप कहीं से भी बुकिंग कर लो और रूम बुक कर लो।
and that too in the minimal cost, competitive cost that of the market, जिन्होंने crores of rupees का अर्निंग अभी तक किया है। एक ऐसा स्टार्टअप है, घर बैठे ऑर्डर करो, खाना आपके घर तक पहुंच रहा है। होटल का खाना खाने के लिए बाहर जाने का समय नहीं है, तो घर पे आप खाना खा सकते हो। ये जो हो रहा है, ये जो डिस्ट्रप्शंस हो रहा है, ये जो इंटरवेंशंस हो रहा है, ये हो रहा है स्टार्टअप से। और ये एग्जांपल्स मैंने आपको इसलिए दिए कि हमारी डे टू डे लाइफ से जुड़े हैं, इसलिए। तो इन स्टार्टअप्स ने क्या किया, और हम एज अ स्टूडेंट ऑफ लाइफ साइंसेस, एज अ स्टूडेंट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, बेसिक साइंसेस, हम क्या कर सकते हैं। तो चलिए इस पे डिस्कशन कर लेते हैं कि हम क्या कर सकते हैं, कैसे मूव कर सकते हैं, कैसे फंडिंग ला सकते हैं, और थॉट प्रोसेस क्या होनी चाहिए। सबसे पहले तो हमारी थॉट प्रोसेस क्या होनी चाहिए, और हमें क्या करना है, ये कैसे हम डिफाइन करेंगे। हाँ, मुझे स्टार्टअप्स तो करना है, लेकिन मुझे कुछ तो भी इनोवेटिव देना पड़ेगा, मुझे कुछ तो भी इंटरेस्टिंग देना पड़ेगा। सोसाइटी रिक्वायरमेंट, जैसे हमने हमारा सॉइल मीटर प्रोडक्ट जो है वो लॉन्च किया, तो ये सोसाइटी की रिक्वायरमेंट है, ये फार्मर्स की रिक्वायरमेंट है कि फार्मर को खुद को एक क्वालिटी कंट्रोल की लैब चाहिए, फार्मर को सॉइल माइक्रोबियल हेल्थ एनालिसिस आना चाहिए। जैसे कि हम देखते हैं, फार्मर मिट्टी की जो न्यूट्रिएंट्स है वो एनालाइज कर लेता है, लेकिन जो मिट्टी में फंजीसाइड्स डालता है, एंटीबायोटिक्स डालता है, रासायनिक खाद डालता है, उसकी वजह से मिट्टी की सॉइल माइक्रोबियल हेल्थ जो है वो हैम्पर होती है, सॉइल माइक्रोबियल फ्लोरा रिड्यूस हो जाता है। और ये कम होने की वजह से क्या होता है कि उसकी जो उत्पादकता होती है, उसकी जो प्रोडक्टिविटी होती है, जो फसल के लिए प्रोटेक्शन होता है नेचुरल, वो निकल जाता है, क्योंकि न्यूट्रिशन, इमोबिलाइजेशन, एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन, इम्यूनिटी, ये सब सॉइल माइक्रोफ्लोरा ही प्लांट्स को देता है। जैसे हम जो भी खाना खाते हैं हमारे स्टमक में जाता है, हमारे जो गट माइक्रोबायम है, गट के जो बैक्टीरिया है उसको पचाते हैं और हमारी सेल्स को डिलीवर करते हैं। इसी तरीके से प्लांट्स के लिए राइजोस्पोर के जो राइजोबैक्टीरिया और राइजो माइक्रोबायम होता है वो इम्पोर्टेंट होता है। लेकिन ये जो रासायनिक चीजें, फंजीसाइड्स, पेस्टिसाइड्स, हर्बिसाइड्स, एंटीबायोटिक्स की वजह से ये कम हो रही है, तो इसकी वजह से किसान की प्रोडक्टिविटी हैम्पर हो रही है, उसका खर्चा बढ़ रहा है। तो इसमें एक चीज चाहिए कि वो अपनी सॉइल का माइक्रोबियल हेल्थ जो है वो एनालिसिस कर सके। तो ये कहाँ पे करना है, उसको जाना पड़ेगा माइक्रोबायोलॉजी लेबोरेटरी में। माइक्रोबायोलॉजी लेबोरेटरी में जाएगा तो सैंपल जब तक वहां पे जाएगा तब तक माइक्रोफ्लोरा में चेंज आ चुका होगा, तो एक्चुअल रिजल्ट उसे मिलेंगे नहीं। उसमें कम से कम उसे 3 दिन लगेंगे। 3 दिन के बाद अलावा उसको 10 एक हजार का पेमेंट उसको देना पड़ेगा। तो ये कब होगा, जब वो करेगा, सैंपल लेके जाएगा, 10 हजार देगा, 3 दिन रुकेगा, तब उसके पास रिजल्ट आएगी। वो भी अप्रोप्रिएट नहीं होगी, क्योंकि जब तक सॉइल सैंपल लैब में पहुंचता है, एनालिसिस के लिए लिया जाता है, तब उसमें माइक्रोफ्लोरा चेंज हो जाता है। तो हमें ऐसा कुछ तो चाहिए जो सॉइल माइक्रोफ्लोरा ग्राउंड पे फार्मर इमीडिएटली एनालिसिस करे। ये मिट्टी निकाली, ट्यूब में डाल दी, रिएक्शन हो गया, और इसमें उसको पता चल गया कि इसमें वाइबल काउंट इतना है, सॉइल माइक्रोबियल हेल्थ इतनी है, या कोई भी जैविक खाद है, प्रोडक्ट में डाल दी, रिएक्शन हो गया, और उसने आइडेंटिफाई कर लिया कि इसकी क्वालिटी इतनी है, बस कुछ मिनट्स में। तो इसमें जो रिक्वायर्ड चीजें थी मार्केट में जो चल रहा था, वो 10 हजार रुपये कॉस्ट आती थी एनालिसिस के लिए। इसके अलावा 3 दिन लगते थे, और रिजल्ट्स भी एक्यूरेसी नहीं थी। तो हमने जो किट इन्वेंट किया इन समस्याओं को देखते हुए, तो हमने क्या देखा कि ये प्रॉब्लम्स है, दीज आर दी प्रॉब्लम्स, एंड इसके लिए क्या चाहिए, फिर हम सॉल्यूशंस दे सकते हैं। सो सिंपली हमने हमारा जो नॉलेज था बायोकेमिस्ट्री का, माइक्रोबायोलॉजी का, यूटिलाइज किया, और एक ऐसा किट मार्केट में लाया कि जो बस 3 घंटे में किसान को उसकी मिट्टी की जैविकता क्या है वो बता देता है, फील्ड पे ही। कोई भी किसान जो ज्यादा पढ़ा लिखा भी नहीं है, वो भी इस किट को यूज करके पता लगा सकता है कि उसकी मिट्टी की उत्पादकता कैसी है, और उसके बाद में फिर उसको एडवाइजरी दी जाती है। सिमिलरली वो क्वालिटी कंट्रोल भी कर सकता है, जो भी इनपुट्स वो ले रहा है वो भी 3 मिनट में। तो जिस काम के लिए 3 दिन लगते थे, वो काम 3 घंटे में हो गया। जिस काम को 10 हजार लगते थे, हमारी किट की कॉस्ट है 310 रुपए। सो बस 310 रुपए में 10 हजार का काम हो गया। तो ये हो गया डिस्ट्रप्शन मार्केट में। जैसे जोमेटो ने किया, क्या किया जोमेटो ने, डिस्ट्रप्शन किया। होटल का फूड लोगों को वेटिंग करना है, रुकना है, क्यू में जाना है, ट्रैवल करना है, तो घर पहुंच कर दिया, ये डिस्ट्रप्शन हुआ। ये सब प्रॉब्लम्स थे कि होटल तक जाना है, प्रॉब्लम है। इसके अलावा वेट करना है होटल में, प्रॉब्लम है। टाइम नहीं है लेकिन खाना तो चाहिए, प्रॉब्लम है। तो इसके ऊपर जोमेटो हैज गिवन द सॉल्यूशंस। सिमिलरली ओला एंड उबेर, कि yeah, I'm not owning a car, it's not my capacity to own a car, but I need to travel to some distance, and that too with immediate assistance. तो मोबाइल एप्लीकेशन से you can book the car, you can go ahead and
you can get your work done. So ये हुए डिस्ट्रप्शंस, दीज आर दी डिस्ट्रप्शंस की जो एक थॉट प्रोसेस है। तो हमें क्या करना होता है कि हमें बस देखना है, हमारी आंखें ओपन रखनी है और हमें देखना ही कि क्या प्रॉब्लम्स हमारी सोसाइटी में है, व्हाट आर द लिमिटेशंस, व्हाट आर द इश्यूज। अभी मैं अभी हूँ फिलहाल जिसे कि जो भी इंडिया का हर एक बायोटेक्नोलॉजिस्ट होता है, माइक्रो visit the Genome Valley. I should do job there over there, or I should have the interactions with the Genome Valley personals. तो मैं अभी हैदराबाद की जिनोम वैली में हूँ और जिनोम वैली में हम एक एमएनसी के लिए एक यहाँ का स्टार्टअप जो है उसको इवेल्युएशन कर रहे हैं। सो एज वी हैव बीन इवेल्युएटिंग दैट पर्टिकुलर स्टार्टअप, तो इसमें क्या है कि वी हैव बीन ऑब्जर्विंग व्हाट आर द थिंग्स दे हैव डन, व्हाट आर द प्रॉब्लम्स दे हैव रिजॉल्व्ड, एंड इन दैट व्हाट वी हैव एनकाउंटर्ड कि जो अभी किसान के पास प्रॉब्लम्स है कि खेत में क्या है कि खेत में पेस्टिसाइड्स भी यूज कर रहे हैं तो भी रिजल्ट्स नहीं आ रहे, इंसेक्ट्स को रेजिस्टेंस हो गया है। किसके लिए? पेस्टिसाइड्स के लिए। जैसे पहले few years before we used to add all the mosquitoes, spray the DDTs. अब DDT का पाउडर जो है, now if we are being adding into the kgs also, तो भी मॉस्किटोज को कुछ नहीं फर्क पड़ता है, कंप्लीटली रेजिस्टेंट टू DDT। सिमिलरली किसान एक्सेसिव एप्लीकेशंस करता है केमिकल पेस्टिसाइड्स की, ड्यू टू दोज केमिकल पेस्टिसाइड्स दोज इंसेक्ट्स आर गेटिंग रेजिस्टेंट। बीटी टेक्नोलॉजी को भी रेजिस्टेंट आ गया। जो भी न्यू पेस्टिसाइड्स मार्केट में आता है 6 महीने 1 साल में ही रेजिस्टेंस हो जाते हैं। तो करना क्या है, कैसे इसका सोल्यूशन मिले? और ज्यादा पेस्टिसाइड्स यूज करेंगे तो हमारी सबकी सेहत के लिए खतरा है। इट्स एन ऑल डेंजर फॉर ऑल ऑफ अस बिकॉज इंसेक्टिसाइड्स आर लीगल, दे आर नॉट फॉर इंसेक्ट्स बट इन हेवी कॉन्सेंट्रेशन दे आर टॉक्सिक फॉर अस ऑल्सो। तो इसमें ग्रीन स्टफ चाहिए कि जो तो ये 3 चीजें हैं जो रिक्वायरमेंट है इंडस्ट्री की। तो इन स्टार्टअप ने क्या किया, इन 3 चीजों को देखा कि फार्मर को इंसेक्ट का कंट्रोल तो चाहिए लेकिन वो इको फ्रेंडली चाहिए, जिसकी वजह से उनका जो फसल है ऑर्गेनिक तरीके से आ सके। जो भी है उनके लिए सेफ चाहिए, पौधों के लिए सेफ चाहिए, कुछ निगेटिविटी उससे नहीं आनी चाहिए और इफिशियंट हो। इफिशियंटली वो पेस्ट को कंट्रोल करे, उसको रेजिस्टेंस सहजता से न आए और इको फ्रेंडली, इकोनॉमिकल, इफिशिएंट। अगर ऐसा प्रोडक्ट हम डिलीवर करते हैं तो ये मार्केट में एक प्रॉब्लम जो है या ये जो प्रॉब्लम है इनको सॉल्व कर सकेगा। तो इस स्टार्टअप में एक ऐसा प्रोडक्ट डेवलप किया कि जो मार्केट में ये सब प्रॉब्लम जो है इनको सॉल्व करता है। इट इज एन मिक्सचर ऑफ सेवरल थिंग्स, दोज आर ऑफ माइक्रोबियल ओरिजिन, and these molecules are controlling the insects, they are retarding the growth of insects। वो इंसेक्ट का पॉपुलेशन भी ग्रोथ होने से रोकते हैं, इंसेक्ट की ग्रोथ रोकते हैं, पैलेटेबिलिटी डिस्ट्रॉय करते हैं, रिप्रोडक्टिविटी डिस्ट्रॉय करते हैं, एंड इसकी वजह से इंसेक्ट का पॉपुलेशन अरेस्ट हो जाता है, किल हो जाता है, जो फार्मर की फसल को नुकसान करता है। तो ऐसे इकोनॉमिकल इंसेक्टिसाइड से इंसेक्ट भी रुक जाते हैं, कॉस्ट भी इफेक्टिव है और ग्रीन एप्लीकेशन है, किसी को भी कोई भी दिक्कत इसमें नहीं होती है। इट्स completely safe to the environment, completely safe to the humans। और इसके लिए इस स्टार्टअप्स को मिनिमल $12 million का फंडिंग भी इंटरनेशनल लेवल पे मिला हुआ है। Oh, wonderful. एंड द पर्सन, अभी अभी आप कहोगे कि ये कोई साइंटिस्ट रहेगा, PhD रहेगा, या कुड हैव बीन सम इंडस्ट्री पर्सन और लाइकवाइज। नथिंग एल्स। द पर्सन हु इज अ फाउंडर ऑफ द स्टार्टअप is simply MSc is simply MSc in biotechnology, and he is MSc in biotechnology and he has developed his startup। So इसके अकॉर्डिंगली हम भी थॉट प्रोसेस में रख सकते हैं कि हमारे सामने प्रॉब्लम्स क्या है। अब हम देखेंगे कि बहुत सारा फूड स्टफ होता है, ये जो फूड स्टफ होता है जो हम बाहर से खाते हैं, उसमें प्रिजर्वेटिव्स होते हैं, राइट? दोस प्रिजर्वेटिव्स आर ऑफ केमिकल ओरिजिन। इन प्रिजर्वेटिव्स में क्या होता है, फंजीसाइड्स होता है, बैक्टीरियासाइड्स जैसे मॉलिक्यूल्स होते हैं, दोज आर हार्मफुल फॉर आवर गट। तो इसमें हम क्या ऐसा हमारी नॉलेज का यूज करके कोई प्रिजर्वेटिव सिंथेसाइजिंग बैक्टीरिया, कोई थॉट प्रोसेस इसमें डाल सकते हैं कि ऐसा प्रिजर्वेटिव दैट ऑफ ऑर्गेनिक ओरिजिन, और ये जो ऑर्गेनिक फूड अभी मार्केट में आ रहा है इसमें भी वो कंपेटेबल हो, क्योंकि ऐसे कुछ प्रोडक्ट्स है भी मार्केट में, लेकिन और प्रोडक्ट्स की जरूरत है। तो अगर हम ऐसा प्रोडक्ट कोई लाते हैं
तो ये प्रोडक्ट क्या करेगा, मार्केट की रिक्वायरमेंट फुलफिल करेगा। सिमिलरली फूड प्रिजर्वेटिव के अलावा फूड में अभी जो हम प्रोसेसिंग होती है फूड इंडस्ट्री की, उसमें भी बहुत सारे एंजाइम्स नेसेसरी होते हैं। हमारी लैब में हम बीएससी एमएससी के लेवल पे प्रोजेक्ट्स भी करते हैं, बहुत सारे प्रोजेक्ट्स करते हैं। तो इन प्रोजेक्ट्स में हम कोई ऐसा एंजाइम फाइंड आउट कर सकते हैं क्या, जैसे कुछ एंजाइम्स जो होते हैं वो मीट प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज में यूज होते हैं, कुछ एंजाइम्स मिल्क प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज में यूज होते हैं, मीट्स का चीज बनाने के लिए एंजाइम्स की जरूरत होती है, different fermentation products के लिए enzymes की जरूरत होती है. So number of enzymes are needed in the industry. So if we take a project assignment कि जब हम ये फाइंड कर लेते कि कौन सी इंडस्ट्री की रिक्वायरमेंट है क्या है, तो सिलेक्टिव स्क्रीनिंग की जैसी मेथड्स है जिनसे हम ये एंजाइम्स आइसोलेट कर सकते हैं, उनका वैलिडेशन कर सकते हैं, कमर्शियलाइजेशन के लिए हम एज अ स्टार्टअप के थ्रू जा सकते हैं, जबकि अमेठी का खुद का इंक्यूबेशन सेंटर है और देर आर गुड इंस्टीट्यूशंस अक्रॉस की जो गवर्नमेंट सपोर्टेड है, जैसे नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एग्रीकल्चर मार्केटिंग। तो यहाँ से सब कुछ अवेलेबल है, मेंटरशिप के साथ सब कुछ, अमेठी के साथ इंफ्रास्ट्रक्चर है, नियाम के पास टेक्निकल पर्सपेक्टिव्स है। तो हम अगर अप्लाई करते हैं, पिच करते हैं, तो हमें लैक्स ऑफ रुपीज का फंड्स इसमें मिल सकता है। और इसमें गवर्नमेंट ने क्राइटेरिया क्या रखा है कि आपको प्रॉब्लम सॉल्विंग आइडिया देना है, वो आइडिया मार्केट में लाने के लिए हम आपकी मदद करेंगे। सो फ्रॉम 5 lakhs to 25 lakhs तक फंड्स जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट से मिलता है, दैट टू नॉन रिफंडेबल। उसके ऊपर आपको कोई भी इंटरेस्ट नहीं देना है, इट्स नॉट लाइक एन बैंक लोन, इट इज नॉन रिफंडेबल अमाउंट। हमें जैसे 18 lakhs का अमाउंट मिला है। बिसाइड्स दैट यहाँ से अकाउंटेंसी से लेके पेटेंट फाइलिंग तक, मार्केट से लेके मार्केटिंग तक, लैबोरेटरी से लेके इंफ्रास्ट्रक्चर तक, ऑफिस के लिए भी सब कुछ स्पेस आपको अवेलेबल किया जाता है। एज एन एमिटी इंक्यूबेटर, एमिटी हैज द स्पेस, एमिटी हैज द इंक्यूबेटर, सो वन कैन टेक बेनिफिट एंड एवरीथिंग इज कोऑपरेटिव ओवर देयर। तो आप इससे बेनिफिट ले सकते हो। अब देखिए, जबकि not only life science students, but even a marketing students or the business administration students or the system administration students, they can also have the open eyes and they can observe the problems. It is not necessary कि ये चीज जो है इसके लिए बायोटेक्नोलॉजी का स्टूडेंट जो है प्रॉब्लम ढूंढे। Yeah, so if a person from a management background identifies a problem, हाँ, ये मिल्क प्रोसेसिंग इंडस्ट्री है, इसमें चीज की बहुत ज्यादा रिक्वायरमेंट होती है, तो क्या मैं कोई ऐसा नेचुरल प्रोडक्ट ला सकता हूँ मार्केट में कि जो इमीडिएट चीज फॉर्मेशन के लिए मदद करेगा, उसका टेक्सचर सही रखेगा, उसमें कलर फॉर्मेशन सही तरीके से आने में मदद करेगा, उसमें टेस्ट एनहांस करेगा। तो अगर ये सोचता है तो इफ ही डू द बैकवर्ड रिसर्च, तो इसको पता चलेगा कि हाँ ऐसे ऐसे प्रोडक्ट्स होते हैं। सो ही कैन हायर द माइक्रोबायोलॉजिस्ट, ही कैन कोलैब द माइक्रोबायोलॉजिस्ट, देन ही कैन ऑल्सो गेट अप टीम्ड विद द माइक्रोबायोलॉजिस्ट। अब जैसे कि मेरा स्टार्टअप है, मेरे स्टार्टअप में आई एम PhD in biochemistry. I have a business administration in the तो ये सब लोग जो है वो साथ में आते हैं, टीम बनती है, काम होता है। और अगर आप अकेले भी है, आपके पास आइडिया भी है, तो आपको इंक्यूबेशन में टीम डेवलपमेंट से लेके सभी चीजों के लिए हेल्प जो है, मदद जो है वो की जाती है। सो नंबर ऑफ थिंग्स आर देयर मूविंग ऑन अ पॉजिटिव अप्रोच व्हेन यू थिंक आउट ऑफ बॉक्स। जैसे भी कोई भी इंडस्ट्री खड़ी होती है, जैसे जोमेटो हुआ, जैसे देहात इज वन ऑफ द स्टार्टअप, सीड्स टू मार्केट उनकी कंसेप्ट है, और इट इज गोइंग टू बी एन यूनिकॉर्न स्टार्टअप, और लाइकली इट्स एन यूनिकॉर्न स्टार्टअप। तो ये बिहार से है, कुछ लोग जिन्होंने देखा कि फार्मर को सीड से लेके सोइंग तक, सोइंग से लेके मशीनरी तक, मशीनरी से लेके पेस्टिसाइड फर्टिलाइजर तक, फर्टिलाइजर से लेके जो भी फसल आती है उसको मार्केट में बेचने के लिए हर जगह पे दिक्कतें है। हाउ टू सॉल्व देम? सो दैट themselves skip their jobs, they came to rural area, they went to rural area, और गांव में जाने के बाद उन्होंने 6-7 साल तक वो पूरी सिस्टम स्टडी की कि ये कैसे होता है, क्यों होता है, किस लिए होता है, फार्मर को क्या दिक्कतें आती है, उसका रीजंस क्या है, और उसके बाद में उन्होंने एनालाइज किया साथ में बैठ के उसके ऊपर क्या समाधान ढूंढा जाए। तो फिर इससे शुरू हुआ देहात नाम का स्टार्टअप, एंड द देहात इज वन ऑफ द लार्जेस्ट स्टार्टअप इन इंडिया इन द एग्रीकल्चर फील्ड, विच इज गोइंग टू बी एन यूनिकॉर्न स्टार्टअप वेरी सून। मिस्टर अमरेंद्र जी है, मिस्टर हिमांशु जी है, दे आर ऑल लीडिंग देहात। आप उनकी प्रोफाइल या देहात की प्रोफाइल भी जाके देख सकते हो, यूल गेट एन इंस्पिरेशन फ्रॉम दैट। तो
क्या किया उन्होंने? उन्होंने क्या? कुछ नहीं किया, एक्स्ट्रा कुछ नहीं किया। दे सिंपली आइडेंटिफाइड द प्रॉब्लम एंड ट्राइड टू डिलीवर द सॉल्यूशन। लेकिन सॉल्यूशन कैसे दिया? जो भी उनका एजुकेशन था, जो भी उनका नॉलेज था, बस सिंपली उन्होंने उसको यूटिलाइज किया। देखो, हम हर ईयर, एवरी न्यू ईयर ऑफ स्कूल, कॉलेज, डिग्री में जो है स्कूल से लेके, वी हैव बीन लर्निंग न्यू थिंग्स। तो ये सब हमें क्यों सिखाया जाता है? नॉट ओनली टू द जॉब, नॉट ओनली टू डू द सर्विस, तो इसके अलावा भी इनके प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस हमारी लाइफ में है। और अगर ऐसा एक एप्लीकेशन हम हमारी नॉलेज से यूटिलाइज कर लेते हैं, उसके ऊपर सॉल्यूशन दे देते हैं, तो वो कमर्शियलाइजेशन हो जाता है। दिस बिकम्स कमर्शियलाइजेशन। और आज की तारीख में उसकी अगर डेफिनेशन करें तो वो स्टार्टअप हो जाता है। सिंपली हमें सॉल्यूशन देना है प्रॉब्लम को, वो भी हमारी थॉट प्रोसेस है जो हमने आज तक सीखा है। सो बीइंग एन बायोकेमिस्ट, मैंने क्या थॉट प्रोसेस किया कि सिंपली कुछ तो ऐसा होगा जिससे माइक्रोब्स जो है, लिविंग माइक्रोब्स, उनका रिएक्शन होता होगा, वो कुछ क्वांटिफाइबल होता होगा, कुछ चीजों कलर कोड उसमें अगर आ जाता है तो पीएच स्ट्रिप के जैसे कलर देखना आसान होता है, वैसे काउंट कंपेयर करना आसान होता होगा। तो बस मैंने ये थॉट प्रोसेस यूटिलाइज किया and we have delivered the India's only and first soil microbial health analysis kit. तो it is always a proud moment for us कि इस देश के कृषि मंत्री जी ने खुद उनके हाथों इस किट का अनावरण किया। तो ये एक माई सेल्फ बिकम एन पर्सन फ्रॉम एन कॉमन बैकग्राउंड लाइक यू, ये हो गया। माई डैड वॉज एन गवर्नमेंट सर्वेंट, ही वॉज एन क्लर्क इन द गवर्नमेंट, and with my basic knowledge of BSc, MSc and what I did in the rest, जिसकी हेल्प से मैंने ये किया, इसमें बस थॉट प्रोसेस ली, उसका यूटिलाइजेशन किया, उसके पहले प्रॉब्लम्स क्या है ये देखे, और उसके अकॉर्डिंगली मेरी नॉलेज के बेस के ऊपर मैंने सोल्यूशन दे दिया। तो ऐसे नंबर ऑफ थिंग्स आर देयर। Nowadays I just came across one perspective in one institution। तो वहाँ पे कुछ स्टूडेंट्स ने हमें अप्रोच किया and they've asked कि सर, you have a microbiology lab and everything, so can you help us in delivering certain things, क्योंकि हम बायोफ्यूल में भी काम करते हैं। So we said yes, we can do that। तो उन्होंने उनकी कॉलेज से 3 महीने का परमिशन लिया। They came to our laboratory and they have isolated some strains, those are novel biohydrogen producers। अब हम देख रहे हैं कि बैटरी के ऊपर की गाड़ियां आ रही है, पेट्रोल की गाड़ियां कम हो रही है, डीजल के ऊपर बैन आने की पॉसिबिलिटी है 2027 के आसपास। और हम कह रहे हैं कि ग्रीन चाहिए, ग्रीन चाहिए, लेकिन बैटरी ऑपरेटेड व्हीकल्स ये डीजल और पेट्रोल से भी ज्यादा पोल्यूशन करने वाले हैं, क्योंकि इसमें है लीड, इसमें है क्रोमियम, इसमें है मर्क्यूरी। और इसके लिए चार्जिंग क्यों, इसको चार्जिंग करनी है तो हम इलेक्ट्रिसिटी यूटिलाइज करते हैं। इलेक्ट्रिसिटी भी ऐसे चीजों से आती है जो थर्मल पावर स्टेशन है, जिससे पोल्यूशन होता है। जो न्यूक्लियर पावर स्टेशन है, दोज आर रिस्की टू हैंडल। तो whether the batteries are good enough or they are green technology, no, that are not at all green technologies। लेकिन अभी फिलहाल की ये जरूरत है, क्योंकि फ्यूल जो है पेट्रोल और डीजल के ऊपर की डिपेंडेंसी हमें कम करनी है। सो दिस स्टूडेंट्स, दिस बॉयज एंड गर्ल्स वर हैविंग द थॉट प्रोसेस दैट कि उनको क्या करना है, उनको ऐसा कुछ करना है कि जो बायोलॉजिकली तरीके से हो। और ये उन्होंने कैसे सोचा कि जब हमारे जो यूनियन मिनिस्टर है रोड ट्रांसपोर्ट के, गडकरी जी, इन्होंने टोयोटा की एक मिराई नाम की कार चलाई जो बायो हाइड्रोजन के ऊपर है, और वो वही कार यूज करते हैं। सो टोयोटाज मिराई कार इज अबाउट टू गेट लॉन्च्ड इन इंडिया बिफोर द टाइम मिनिस्टर इज यूजिंग एज एन ट्रायल बेसिस। तो ये बायो हाइड्रोजन पे चलने वाली कार है। अगर ये बायो हाइड्रोजन पे चलने वाली कार है तो इसके लिए हाइड्रोजन भी की भी पूर्तता बड़े पैमाने पे लगेगी। विच इज द इजिएस्ट वे टू ऑब्टेन द बायो हाइड्रोजन? इजिएस्ट वे इज फ्रॉम द वाटर, बट हाउ टू डू दैट? तो इसमें कुछ एंजाइम्स का हम इस्तेमाल कर सकते हैं, कुछ माइक्रोबियल एंजाइम्स के इस्तेमाल से, कुछ रिसोर्सेस से, कुछ ग्रीन केमिकल से हम बायो हाइड्रोजन का प्रोडक्शन कर सकते हैं। other thing, what is other thing to get the biohydrogen production done? It is with the help of जो भी हमारी गोबर है, या जो भी हमारा वेस्ट होता है खेतों में। हम जानते हैं ठंडी आते ही कोहरे से बवाल मच जाता है, क्योंकि पंजाब हरियाणा से फार्मर जो है यूपी से पराली जलाते हैं, तो दिल्ली में कुछ दिखता ही नहीं है, सांस लेने को दिक्कत होती है। और जब ओबामा आए थे तो उनकी जो लाइफ थी वो 3 घंटे कम हो गई थी, ऐसा उन्होंने एनालाइज किया था, बस एक कुछ मिनट्स के ब्रीदिंग करने से, वो भी दिल्ली में इतना पोल्यूशन हो जाता है। जबकि गवर्नमेंट ने लॉज भी लाए हैं, लेकिन क्या करना है, पराली बर्निंग इज एन बिग इशू। तो इसमें अगर हम ऐसा कुछ करें कि जो पराली बर्निंग के अलावा
पैरेलली से फर्टिलाइजर भी निकले और उससे ऐसी गैस भी निकले कि जिसके हम ऊपर गाड़ियां चला सकते हैं, बायो सीएनजी, बायोफ्यूल, बायो हाइड्रोजन। तो ये इसके ऊपर हम स्ट्रेंथ आइसोलेट कर सकते हैं। ये नॉट नेसेसरी ये कोई बायोलॉजिस्ट ही करे, माइक्रोबायोलॉजिस्ट ही करे, इवन एडमिनिस्ट्रेशन पर्सन कैन थिंक ओवर इट। और इसके ऊपर अगर हम सोचेंगे तो हम कोई हैं, टेक्नोलॉजीज आउटसोर्स कर सकते हैं, कंबाइन कर सकते हैं और सॉल्यूशन डिलीवर कर सकते हैं। तो अगर हम जैसे मैंने आपको कहा कि दो स्टूडेंट्स केम, दे हैव आइसोलेटेड द बायोहाइड्रोजन प्रोड्यूसिंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, और उनकी जो प्रोसेस थी वो पेटेंट भी फाइल हो गई है। मतलब 3 महीने का उन्होंने टाइम निकाला था, 2 महीने में आइसोलेशन और सब कुछ प्रोसेस हुआ, और नेक्स्ट महीने में डॉक्यूमेंटेशन होके पेटेंट फाइल हुई। एंड इन द लास्ट मंथ दे हैव अप्लाइड फॉर द स्टार्टअप एज अ कमर्शियलाइजेशन ऑफ देयर आइडिया एंड द प्रोडक्ट। तो इसके अंडर उन्होंने एप्लीकेशन करने के बाद उनको 14 lakhs का फंड्स भी अभी सैंक्शन हुआ है, जिसमें उनको 5 lakhs फर्स्ट क्वार्टर में मिलेंगे, जो उनका प्रोडक्ट्स का कमर्शियलाइजेशन करने में, वैलिडेशन करने में उनकी मदद करेगा। See, merely in 3 to 4 months this has happened. Max to max 4 to 5 months of the process, कि इसमें उनका प्रोडक्ट भी कमर्शियलाइज हो गया। ऐसे हम कर सकते हैं। जैसे अभी एक कंपनी है, वर्ल्ड्स लार्जेस्ट बायोगैस प्रोड्यूसर कंपनी, जिसका नाम है सिस्टेमा, और उनकी सबसे बड़ी मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी ब्राजील के बाद उन्होंने इंडिया में, महाराष्ट्र में, पुणे के पास में साकन एमआईडीसी जो है, 5 स्टार एमआईडीसी, वहाँ पे एस्टेब्लिश की है। तो ऐसी भी कुछ कंपनियां होती है कि जिनको ये टेक्नोलॉजी चाहिए होती है, क्योंकि बिग कंपनीज हैव द बिग इंफ्रास्ट्रक्चर, बिग रिसोर्सेज, बिग R&Ds, और जो भी प्रोडक्ट डेवलप करेंगे उसका कॉस्टिंग भी बिग होता है। सो देयर प्रॉफिटेबिलिटी हैम्पर्स। सो व्हाट दे लुक आफ्टर द टेक्नोलॉजीज फ्रॉम द स्टार्टअप्स। एंड द स्टार्टअप्स के पास क्या होता है कि सब कुछ हायर किया होता है, खुद का तो कुछ कम से कम रिसोर्सेस होते हैं इकोनॉमिकल लिमिटेशंस की वजह से। तो इसकी वजह से वो देखिए, हमें अगर हमारी लैब में हम काम करते हैं माइक्रोब्स के ऊपर और हमें कोई बैक्टीरिया का स्ट्रेन आइडेंटिफाई करना है, तो हम अगर डीएनए सीक्वेंसर रखेंगे तो 1 CR का इन्वेस्टमेंट उसमें हो जाएगा, और उसका एनालिसिस का कॉस्ट जो है, मेंटेनेंस का कॉस्ट जो है वो भी एक्स्ट्रा रहेगा। तो इसके ऊपर एक टेक्निकल पर्सन हायर करना पड़ेगा, जिसको 40,000 से 1 लाख तक मंथली सैलरी देनी पड़ेगी। लेकिन एज अ स्टार्टअप हम क्या करते हैं, we have been simply spending rupees 7,000 to National Center for Cell Science और आधार का रिसर्च इंस्टीट्यूट NCL, नेशनल केमिकल लेबोरेटरी, यहाँ पे सैंपल दे देते हैं। 7 to 14,000 रुपीज में हमें उस बैक्टीरिया का आइडेंटिफिकेशन 16 SR DNA टेक्नोलॉजी से करके मिल जाता है, अवेलेबल हो जाता है, तो उसका आइडेंटिफिकेशन क्लियर हो जाता है। अगर कोई बड़ी इंडस्ट्री है वो डीएनए सीक्वेंसर भी रखते हैं, सब कुछ इन हाउस रखते हैं, तो इनके तुलना में जो स्टार्टअप है उनका टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट का कॉस्ट है इज लेस देन 1%। उनका 100% है तो हमारा लेस 1% है। तो इसके बेसिस पे इंडस्ट्रीज भी क्या कर रही है आज, हाँ, वो स्टार्टअप्स ढूंढ रही है, हाँ, कौन सा स्टार्टअप है, कौन सी टेक्नोलॉजी है, और उनकी फील्ड में जो भी टेक्नोलॉजी उनको बेस्ट रिसोर्सफुल है, इकोनॉमिकल है, इफिशियंट है, इको फ्रेंडली है, उस टेक्नोलॉजी के लिए उस स्टार्टअप में इन्वेस्टमेंट कर रही है। तो अगर ऐसी इन्वेस्टमेंट आती है तो कुछ ही दिनों में वो स्टार्टअप जो है उसमें मल्टीपल और मिलियंस ऑफ रुपीज आ जाते हैं, और दे हैव बीन डूइंग गुड। तो इसमें पहले जो बैरियर्स थे कि ग्रेजुएशन है या पोस्ट ग्रेजुएशन है या डिफरेंट स्ट्रीम्स में कैसे करना है, ये अभी कुछ भी बैरियर नहीं है। अभी क्या है, अभी सिर्फ अपॉर्चुनिटीज है। एज अ स्टार्टअप फाउंडर, एज एन एंटरप्रेन्योर, एज एन साइंटिस्ट, ऑब्जर्विंग की प्रॉब्लम्स क्या है, मेरा फोकस हमेशा प्रॉब्लम्स के ऊपर रहता है। और मैं हमेशा सबके लिए यही चाहूंगा कि आप भी प्रॉब्लम्स के ऊपर फोकस करें, क्योंकि अगर हम प्रॉब्लम्स के ऊपर फोकस करते हैं तो सॉल्यूशन ढूंढ लेते हैं, और सॉल्यूशन ढूंढ लेते हैं तो सॉल्यूशन से आगे बढ़ने में आसानी हो जाती है। इसके अलावा अगर आप कमर्शियल थॉट प्रोसेस लेके चलते हैं, स्टार्टअप के लिए एंटर कर सकते हैं, एंटरप्रेन्योरियल जर्नी शुरू करना चाहते हैं, तो ये सॉल्यूशन आपको एक सीढ़ी देता है, या आपको एक हाथ में वेपन देता है जो आपको आगे जाने के लिए हेल्प करता है। So likewise, have a thought process, have focus onto the problems। देखिए कि हमारे नियर नियर बाय एटमॉस्फेयर में, सोसाइटी में क्या प्रॉब्लम्स है। अगर आप फार्मर बैकग्राउंड से हैं तो आप देखो खेत में क्या प्रॉब्लम्स है, आपका जो माइक्रोबायोलॉजी हुआ है या एडमिनिस्ट्रेशन हुआ है, इससे आप प्रॉब्लम्स को कैसे सॉल्व कर सकते हैं। सिमिलरली फूड इन हमारे घर में भी हम जो भी रसोई बनाते हैं, जो भी फूड स्टॉक बनाते हैं, इसमें भी डिफरेंट डिफरेंट इश्यूज होते हैं। तो अभी रिसेंटली आई केम अक्रॉस अ स्टार्टअप कि जिन्होंने एक 100 रुपीज का किट डेवलप किया है। उस किट से घर में जो भी डेली यूज
यूज में आने वाली चीजें हैं, जैसे देसी गाय का घी है, जैसे टर्मरिक पाउडर है, चिली पाउडर है, या ऐसे कुछ 7 डिफरेंट एस्पेक्ट्स थे कि जो सबसे ज्यादा अडल्ट्रेंट हो सकते हैं। टर्मरिक में अडल्ट्रेशन होता है, चिली पाउडर में अडल्ट्रेशन होता है, देसी घी में अडल्ट्रेशन होता है। तो उनका 100 रुपीज का किट है। इस किट से हम 6 बार ये अडल्ट्रेशन जो है वो चेक कर सकते हैं। तो वट एवर द फूड वी आर गोना गेट इज एन अडल्ट्रेशन फ्री फूड। अगर हम मार्केट में जाएंगे, देसी घी प्रोक्योर करेंगे, एंड इफ यू गो थ्रू एंड इफ यू फाइंड इट आउट, तो उसका टेस्ट सही नहीं होता है, उसका टेक्सचर अलग होता है, खाने के बाद वो वनस्पति घी जैसा लगता है। तो ये प्रॉब्लम्स कॉमन है। तो हाउ हाउ कैन डू, बेसिक केमिस्ट्री है इसके बारे में, बेसिक थिंग्स आर अवेलेबल। तो इसका यूटिलाइजेशन हम कर सकते हैं। और ये जो केमिस्ट्री होती है, ये नॉट नेसेसरी इट शुड बी फ्रॉम द ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन, फ्रॉम द PhDs। लाइक ये सब चीजें हैं, ये हमने स्कूल लाइफ में भी पढ़ी है, और ये चीजें हमने 11th 12th में केमिस्ट्री में भी पढ़ी है। इसके अलावा उसमें कुछ नहीं है। तो बस सिंपली गो ऑन द रेफरेंसिंग, गैदर द मटेरियल रिसोर्सेस, और इसके ऊपर आप आइडिया पुट फोर्थ करो। अगर आपके पास आइडिया भी है, then you can simply put forth the idea and pitch it out। और आइडिया का कमर्शलाइजेशन करने के लिए भी आपको फंडिंग इसमें मिल सकता है। सो दिस वे वन कैन गो अहेड फॉर द स्टार्टअप्स। तो पहले जैसा था कि ये डिफिकल्ट था, फंडिंग्स लाना है, ये करना है, तो अभी आप अगर सिर्फ आइडिया भी रखते हो, तो भी आप आपका आइडिया भी पिच करके लैक्स ऑफ रुपीज का फंडिंग जो है आपके स्टार्टअप्स के लिए ला सकते हो। इसके लिए आपका इंक्यूबेशन सेंटर है। इसके लिए आप जयपुर में ही नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एग्रीकल्चर मार्केटिंग है, वहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट का इंक्यूबेशन सेंटर और मेंटरशिप सेंटर है। या मैंने जो भी एसोसिएट्स अमिटी के साथ जुड़े हैं, वो सभी आपको आपके टीचर्स के साथ आपको गाइड करने के लिए तैयार है। तो अगर आपके पास कोई नॉवेल आइडिया है, तो सामने आइएगा। हम आपको उस आइडिया का कमर्शलाइजेशन करने में, उसका स्टार्टअप में कन्वर्जन करने में पूरी हेल्प करेंगे। लेकिन सोच सिर्फ डिफरेंट होनी चाहिए। प्रॉब्लम्स पे फोकस करो। लोग कहते हैं कि प्रॉब्लम्स पे फोकस मत करो, ये निगेटिव है। बट व्हाट आई विल से एज एन एंटरप्रेन्योर, फोकस ऑन टू द प्रॉब्लम्स। अगर आप प्रॉब्लम्स पे फोकस करते हो ना, तो ये आपका थॉट प्रोसेस सॉल्यूशन के लिए आगे बढ़ पाता है। और सॉल्यूशन आप उसके अलावा मेरी एक ऐसी सोच है कि बिकम ए लेजी। आपको लेजी होना है। जब भी आप प्रॉब्लम पे सोचोगे, तो आपको लेजीली ये थॉट प्रोसेस रखनी है कि कम से कम लागत में, कम से कम कॉस्ट वाला सॉल्यूशन में कैसे डेवलप कर सकता हूँ। ये एक्चुअली स्टार्टअप्स का सीक्रेट है। आपको लेजी होना है, एक तो आपको प्रॉब्लम पे फोकस करना है। मतलब जो भी हमें पढ़ाया जाता है, आई एम सॉरी टू से, लेकिन मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि आप जो भी कर रहे हो, तो मैं, लोग कहते हैं कि पॉजिटिव देखो, पॉजिटिव सोचो। मैं कहूंगा कि आप जो भी नेगेटिव प्रॉब्लम्स है उनको देखो, और उनके ऊपर पॉजिटिव सोचो। और हमें एक्टिव होना चाहिए, एनर्जेटिक होना चाहिए। तो मैं ये कहूंगा कि आप जब भी ये सोच कर रहे हो इनोवेशंस की, डेवलपमेंट की, तो आप लेजी सोच रखो कि कम से कम लागत में, कम से कम वस्तुओं के साथ मैं ऐसा क्या बना सकता हूँ कि जो कोई भी सहजता से एक्सेस कर सके और सहजता से यूज कर सके। कुछ चीजें यूज करने के लिए भी डिफिकल्ट होती है, तो आप लेजी थॉट प्रोसेस रखोगे, तो ये चीजें आप सहजता से थॉट प्रोसेस में ला सकोगे, डेवलप कर सकोगे, उनका यूटिलाइजेशन कर सकोगे। So that way one can have the solution to the problems। और बोलना सीखो। आपको बोलना है, आपको बताना है आपके आइडिया क्या है। और इसमें कुछ नई बात नहीं है पिचिंग में। इसमें आपको 3 से 10 मिनट का समय होता है, उसमें आपको आइडिया बतानी होती है, उसमें आप लैक्स का रुपीज का फंडिंग ले सकते हो। लेकिन ये कैसे बतानी है, इसके लिए बहुत सारे लोग क्लासेस लेते हैं, मेंटरिंग करते हैं। लेकिन मेरा ये कहना है कि जो आपकी आइडिया है, जो आपकी थॉट प्रोसेस है, वो एज इट इज बताओ। जितना नेचुरली, जितना आपके अंदर के कॉन्फिडेंस के साथ आप बोलोगे, उतना आपका पिचिंग का सक्सेस रेट ज्यादा होता है, और आपको फंड्स मिल सकता है आगे बढ़ने के लिए। अगर हम कुछ उसमें एडिशंस करते हैं, या कुछ चीजें ऐड करते हैं, या कुछ एटिकेट्स ऐड करते हैं, तो वी लूज द कॉन्फिडेंस। जितना आप नेचुरल हो, आप बहुत सारे शोज तो देखते हो टीवी के ऊपर, जितना आप नेचुरली एज इट इज उसका रिप्रेजेंटेशन करोगे, उतना उसका ट्रूथफुलनेस जो है, उतना उसका इम्पोर्टेंस जो है, वो सामने आएगा। and that will help you to get the funds, that will help you to get the funds। तो इसलिए this is my thought process, and this is my suggestion to all of you कि प्रॉब्लम पे फोकस करो। सोचना है तो सॉल्यूशंस के बारे में पॉजिटिवली सोचो, प्रॉब्लम के बाद नेगेटिव चीजों पे फोकस करके पॉजिटिव इम्प्लीकेशंस के बारे में सोचो, पॉजिटिव डेवलपमेंट्स के बारे में सोचो। एंड बिकम अ लेजी इन द इनोवेशंस, नॉट इन योर स्टडी एंड डेली लाइफ, बट अगर आपको कुछ ऐसा ढूंढना है नया,
तो लेजीनेस रखो जो आपके कम से कम लागत में इकोनॉमिकल वे से आगे बढ़ने में मदद करेगा। सो दिस वाज ऑल अबाउट कि स्टार्टअप्स करना है, एंटरप्रेन्योरल जर्नी करनी है, तो आपको फंडिंग से लेके सब कुछ गवर्नमेंट की तरफ से अवेलेबल है। इन इंक्यूबेशन सेंटर्स में आपको लैब्स अवेलेबल है, गाइडेंस अवेलेबल है, मेंटरशिप अवेलेबल है, सब कुछ अवेलेबल है। एंड हमारे वक्त ऐसा कुछ नहीं था हमारे कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज में। एंड यू आर सो ब्लेसफुल या ब्लेस्ड हो कि आपकी इंस्टीट्यूट में इतना सारा इंफ्रास्ट्रक्चर है, वेल इक्विप्ड लैब है, इंक्यूबेटर है, मेंटर्स है, और इतने सारे रिसोर्सेस आपसे जुड़ दिए जाते हैं कि आप आगे कुछ कर सको। तो ऑल माय बेस्ट विशेस टू ऑल ऑफ यू। अगर आप आगे बढ़ना चाहते हो, कुछ काम करना चाहते हो, यू मे कॉन्टैक्ट दी सर योर इंक्यूबेशन सेंटर और टू मी। वी विल सर्टेनली हेल्प यू टू गो अहेड विथ टू गेट द फंड्स टू डिजाइन आइडिया हाउ टू पिच, और सब में जाने के लिए हम आपको मदद करेंगे। और जो भी आज की तारीख में मिलियन डॉलर स्टार्टअप्स हैं इंडिया में, दे आर फ्रॉम द कॉमन फैमिलीज, रिसोर्सफुल फैमिलीज, बट उनका थॉट प्रोसेस बस अलग था। पहले ऐसा था कि कोई भी मिलियनियर या बिलियनियर मिलियनियर फैमिली से ही आता था, बट नाउ द थिंग्स आर डिफरेंट। स्टार्टअप्स की वजह से, फंडिंग सपोर्ट की वजह से आप कुछ महीनों में, कुछ सालों में भी मिलियनियर बिलियनियर बन सकते हो। बस सोच सही रखनी चाहिए, आप आगे बढ़ सकते हो। So best wishes to all of you, and thank you, sir, for giving me an opportunity. I always love to talk to you all with Amitians, and I'm also a proud Amitian. Thank you so much. Sir, unmute करना पड़ेगा Yeah, sir. thank you, Dr. Thank Praful, you. for sharing the secret of your success. And as I already covered that my management students, biotechnology, food technology, microbiology students are available in this hall along with some faculties from respective domain. And I have one question, then definitely I have the similar examples, because we all have seen the blood glucose monitoring system, and Dr. Manali knows better because she has also developed a small kit for kidney disease diagnostics. So how quickly we can now calculate the blood glucose? It will take a minute. And earlier it was taking a full day. Journey to the lab and then sampling, then return by evening, then collection of the report. It was a full day fatigue journey, tension giving journey. And now it is requiring 1 minute. And we all, I think we have seen during the COVID time, MRI machines. MRI machine is a big machine where the full body is giving inside, and the half an hour, the machine is giving very cranky sound, and it is not a good experience. And now portable MRI is available in the market. It is a small size portable MRI, no sound. So it means problem and solution, problem and solution. So waste management is the new task. Green energy is the new task. Sustainable solution is the new task. So that is why in our university, maybe somewhere others also, but the management, biology, all type of the students, you have option to take cross sectoral domains. Because Praful sir, आपसे question है कि we are, yeah, please Nikita, yeah, we are the biology students, and for entrepreneurship, a knowledge of the legal aspect, financial aspect, management knowledge is required. So how you imbibe these traits from the market or maybe from the regular education? Because if I'm the BTech biotechnology or if I'm the BBA only, then how can I enter in the entrepreneurship journey without the knowledge of the IPR, computers, softwares, and all type of the related material? Over to you, Dr. Praful. Thank you so much, sir, for the question. It's an indeed very much asked question from the startup and related things. So in this concern, एक तो आपके पास Android, Google, and things are available right now. When I've started my journey, things were not that applicable, yeah, not that accessible.
तो अभी ये सब चीजें हैं, एवरीथिंग इज अवेलेबल विद इन द पाम्स एंड विद इन फ्रैक्शन ऑफ सेकंड्स. सेकेंडली, गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स है जिसमें गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस की तरफ से इसके ऊपर स्पेशल ट्रेनिंग प्रोग्राम्स लिए जाते हैं, गाइडेंस किया जाता है, जो इंक्यूबेशन सेंटर्स है. सो व्हेन आई केम अप विद द यूनिक प्रोडक्ट, नोवेल प्रोडक्ट, at that time the incubation center, National Institute of Agriculture Management, has arranged all kind of training to the startups like me, जिसमें IPR से लेके अकाउंट्स मेंटेनेंस से लेके कंपनी का अप्रोचेस से लेके लीगल कंप्लायंसेस, रेगुलेटरी कंप्लायंसेस, सब कुछ के बारे में उन्होंने हमें ये ट्रेनिंग अवेलेबल करवाई. Okay, just hold on, just hold on. So, students, Dr. Praful is saying that one of the government institution is providing these all details in the small capsule training. And in our university, Kothari sir, we are giving this type of the choice-based credit system, where in every semester, every year, you can also take 3 credits from the department, because our university is running 70 programs. So you can go to the government for the capsule training. You can also choose your own department to take the similar training. We have IPR faculty, we have accounts faculty, and we also have all biology side faculty and the management faculty. So Praful sir is saying that either you go for the government agency or you can go to your own faculty and increase your knowledge. We are saying so many times that cross-sectoral knowledge is required. After completion of BTech, Biotech or BSc in microbiology, you need a knowledge of management. You need a knowledge of IPR. You need a knowledge of communication, and also definitely idea. वो तो आपको अपना ही लाना पड़ेगा, वो मेरे से नहीं मिल सकता है. सरी साहब, Okay. बहुत सही कहा आपने. और प्रफुल्ल, आपने बहुत अच्छा टॉक दिया, बहुत अच्छे एग्जांपल्स दिए. और जो आपने बात कही है, सबसे पहले प्रॉब्लम आइडेंटिफाई करो, है ना. Yes. तो मैं ये चैलेंज देता हूँ सभी स्टूडेंट्स को जो बैठे हैं यहाँ, और फैकल्टी को भी, कि आप एक प्रॉब्लम आइडेंटिफाई करो, फिर उसके बारे में गहराई से सोचेंगे. पहले 150 प्रॉब्लम तो आइडेंटिफाई हो जाए, उसमें से कौन सी प्रॉब्लम ऐसी है जो डुएबल है और इसकी मार्केटेबल भी है. कई प्रॉब्लम्स तो ऐसी हम निकाल के लाएंगे कि भाई उसको सोल्व भी कर देंगे तो मार्केटेबल नहीं होगी. तो ऐसी समस्या ढूंढें अपन पहले जो डुएबल है, मार्केटेबल है. क्योंकि प्रॉब्लम्स जितनी भी है प्रोफेसर प्रफुल्ल, उनके सॉल्यूशन कहीं ना कहीं तो अवेलेबल है ही. Yes. Certainly. और उसके लिए जरूरी नहीं कि आपको सब चीज आती हो. हम नॉलेज बोरो कर सकते हैं, ब्रेनस्टॉर्म कर सकते हैं. Yes. Yes. प्रॉब्लम आइडेंटिफाई हो जाए Yes. सर, तो हम कोई ना कोई एंटरप्रेन्योर डेवलप कर देंगे उसमें से. तो आप स्टूडेंट्स को ये चैलेंज दीजिए Yes. कि एक प्रॉब्लम, सब अभी के भी नहीं, लेकिन कभी ऐसी गैदरिंग करिए आप सर, जिसमें स्टूडेंट सोसाइटल प्रॉब्लम्स को लेके आए कि Yes. सोसाइटी में ये प्रॉब्लम्स है. जैसे फॉर एग्जांपल फ्लोराइड की प्रॉब्लम है, या कोई और छोटी मोटी प्रॉब्लम है, बहुत बड़ी प्रॉब्लम ना हो, और या बहुत वाइड स्प्रेड प्रॉब्लम हो, कैसी भी प्रॉब्लम लाएं, उसके अंदर क्या कॉमर्शियल एंगल दिखता है वो सोचें, और अगर कॉमर्शियल एंगल दिखता है तो फिर उसको डुएबल बनाएं. ऐसा मुझे अभी अभी ये ख्याल रहा है. प्रफुल्ल जी, आप क्या कहना चाहेंगे? That's true, sir. Certainly. यही अप्रोच होना चाहिए. Problems identify. हाँ, और सरी सर, अपन एक बार एक ब्रेनस्टॉर्म करें. Yes, sir. We have Definitely. Problem to identify Because, I share with students and Praful sir को तो बिल्कुल पता है. 17 कंपनीज हमने बुलाई थी यूनिवर्सिटी में in last conclave. In last conclave, with help of DST PERS project, we have invited 17 companies to the university. 4 companies ने हमको हाथों हाथ project दिया, including one Praful sir. He has also given project on the spot. And if you remember, my dear students, if you might have attended the convocation ceremony, this convocation ceremony, the MD of Amol Pharma, he has also given the project from the dais. So we are calling industries, students, you are here. तो वो कहावत नहीं है घोड़ा और घास, तो हम लोग तो प्लेटफॉर्म बना रहे हैं. अब आपने आगे चलना है. ये लेक्चर भी आपके लिए हो रहे हैं, फैकल्टीज के लिए हो रहे हैं. अब आपको बेनिफिट लेना है. कोठारी जी, डॉक्टर संकेत, डॉक्टर दीप्ति, डॉक्टर अपर्णा, डॉक्टर प्रीति, डॉक्टर मनाली, वी ऑल आर हियर.
Dr. Deepak, our mission is to provide the platform, our mission is to give the knowledge, and our university main objective is to give quality education cross sectoral. But idea आपको लाना है, help हम करने को तैयार है. I will give very one small example and my role will be finished today. Silence please. जो जमीन से पानी निकालते हैं उसका TDS होता है 800 ppm. 800 से 1000 TDS का हम लोग पानी जमीन से निकालते हैं, ठीक है. और जो आरओ मशीन दीवार पे चिपकी होती है कॉकरोच की तरह, छिपकली की तरह, वो मशीन 70% पानी वेस्ट करती और 30% पानी आपको मिलता है 120 TDS का, जिसको हम पीते हैं. So this is the best technology और पूरी दुनिया उसका उपयोग कर रही है, बट 70% पानी वेस्ट करने के बाद. So इसका सॉल्यूशन अगर आप निकाल लें तो आई थिंक नोबेल प्राइज तो पक्का मिल जाएगा. Because the whole world is wasting 70% of water. Can you imagine? We are in Rajasthan and we are wasting 70% of water. Even in MET, we are using for irrigation. In MET, we are using for irrigation. So हमारा waste नहीं है, but the whole world is doing the same thing. कोठारी सर, ये बहुत बढ़िया प्रॉब्लम आपने आइडेंटिफाई की. इसी तरह की प्रॉब्लम्स और लोग भी आइडेंटिफाई करें और इस प्रॉब्लम पे भी ब्रेनस्टॉर्म करें. हो सकता है किसी स्टूडेंट से बहुत ब्रिलियंट आइडिया आ जाए. Yeah, student, again over to you, because now Kothari ji is saying ideas आपने सोचना है. You are the young blood, you are the young force, you are the tomorrow's leader. आज के लीडर तो यहाँ बैठे आगे, नेक्स्ट लीडर आप हो. Sir, requesting your kind permission as my meeting Yeah, is yeah. going to initiate. Yeah. So I was thinking Thank you so on, much. on behalf of university, thank you very much. Thank you. Thank you. Thank you very much. We'll be in touch. Thank you. Thank you. So Kothari sir, thank you very much Thank you, sir. Thank you. for giving support always. So very good meeting. Very good. Thanks to all of you. Yeah, thank you. Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you.